So very good morning students. We are continuing with the chapter on ecosystem. In the last session we had seen our last topic was detritus food chain. Detritus food chain जो हमने देखा था decomposition के बारे में, ठीक है, वो अपना last topic था. उसके बाद में what we are starting with is now is energy flow. We are starting with is energy flow. Now let us see what is energy flow. Energy flow. नाउ एनर्जी फ्लो मतलब एनर्जी पास कैसे होता है. तो क्वेश्चन आता है सबसे पहले कौन सा एनर्जी, तो दैट एनर्जी इज ऑब्टेन्ड बाय द सन. सो द एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय द सन वो कैसे पास होता है फ्रॉम एक जगह से दूसरे जगह के ऊपर, वो हम देखने वाले हैं इसमें. सबसे पहले we have to know one thing that the sun is the most important source of energy for any ecosystem. Sun is the most important source of energy. अभी जो भी sunlight आता है अर्थ पे, so what can we say? Sun is the most important source of energy in an ecosystem. Most important source of energy. Source of energy in an ecosystem. तो जो भी सनलाइट आ रहा है on the earth, उसमें से less than 50% of it is called as PAR. PAR का मतलब होता है photosynthetically active radiation. क्या बोलते हैं उसको? photosynthetically active radiation, which means the radiation which is going to be used for photosynthesis. जैसे कि हम लोग को पता है सनलाइट जो आता है अर्थ पे, it is going to be coming in the form of different rays. It can be coming in the form of UV light, infrared light and the one which is used visible light, जो photosynthesis के लिए यूज होता है. जो कौन से रीजन में आता है? It is coming in the region of visible light is coming in the region of 390 nanometers to 760 nanometers, जिसको बोला जाता है पार, जिसमें कौन आता है? विबग्योर. So this is called as visible light and this is a small region of electromagnetic spectrum of light and this is called as PAR, photosynthetically active radiation. तो ये less than 50% है. तो बचा हुआ 50% जो सनलाइट आता है उसमें कौन आएगा? जो बचा हुआ 50% सनलाइट आता है उसमें आएगा UV rays, infrared rays and the rays which are not used for photosynthesis by the plants. चलो अभी क्वेश्चन है, लाइट आ गया, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन पार आया, उसमें से अभी हमारे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रीन प्लांट्स हैं वो कितना कैप्चर करेंगे? जो ग्रीन प्लांट्स है ना, ग्रीन प्लांट्स ऑफ द इकोसिस्टम, दे आर गोइंग टू कैप्चर हाउ मच परसेंट? 2 to 10%. So green plants of the ecosystem, they are going to capture कितना बच्चा लोग? 2 to 10% of this PAR. Now वो क्या करेंगे? They are going to capture 2 to 10% of this photosynthetically active radiation and they are going to be using it to convert. They are going to use to convert. क्या convert करेंगे? जो inorganic materials हैं, inorganic molecules हैं, उससे क्या करेंगे? They are going to make organic compounds. कौन से organic compounds है? Organic compounds like glucose. Organic compounds कौन से बचा लो? Glucose. And that process is going to be called as photosynthesis. क्या बोलेंगे वो प्रोसेस को हम लोग बचा लो? photosynthesis बोलेंगे. So जो green plants है वो photosynthesis से क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे. क्या कन्वर्ट करेंगे बच्चा लोग? दे आर गोइंग टू कन्वर्ट इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करेंगे किसमें? इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. दे आर गोइंग टू कन्वर्ट इट इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. मतलब उन लोग यूज क्या करते हैं? दे आर गोइंग टू यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल एंड दे आर गोइंग टू मेक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स लाइक ग्लूकोज एंड व्हाट इज गेटिंग इवॉल्व्ड इज ऑक्सीजन. इवॉल्व होता है ऑक्सीजन. सो ठीक है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अभी किसके बॉडी में आ गए? दिस इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर present in the plants. So we'll say अभी ये जो plants के पास organic compounds बने हैं, so these plants are called as primary producers. These plants are called as primary producers because they are going to make the organic compounds.
अभी ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्लांट्स में आ गए वो अभी पास होगा, बिकॉज हमारे टॉपिक का नाम क्या है, एनर्जी फ्लो. सो एनर्जी हैज टू फ्लो. सो फ्रॉम दिस प्राइमरी प्रोड्यूसर्स दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स is going to go to the next one, which is called as the primary consumer, which is called as the primary consumer. So now these primary consumers are also called as, जो ये primary producers plants को खाते हैं, these primary consumers are also called as herbivores. क्या बोलते हैं इनको, herbivores. Now we have to remember that these primary producers थे जो autotrophs थे plants, उनको जो खाता है that is called as primary consumer, and these primary consumers are called as herbivores. अभी ये प्राइमरी कंज्यूमर को खाने वाला नेक्स्ट वाला वन एनिमल फीड्स ऑन दी नेक्स्ट, तो ये क्या आ जाएगा, अभी नेक्स्ट आएगा टू सेकेंडरी कंज्यूमर. दी सेकेंडरी कंज्यूमर जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं, मतलब हर्बीवोर्स को खाते हैं, दे आर कॉल्ड एज कार्निवोर्स. क्या बोलते हैं इनको, कार्निवोर्स. सो दे आर कॉल्ड एज प्राइमरी कार्निवोर्स बिकॉज ये किसको खाते हैं, हर्बीवोर्स को खाते हैं. किसको खाते हैं, हर्बीवोर्स को. अब ये सेकेंडरी कंज्यूमर को खाने वाला कौन आएगा बच्चा लोग, टर्शियरी कंज्यूमर. सो दिस टर्शियरी कंज्यूमर इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज दी सेकेंडरी कार्निवोर. क्या बोलेंगे इसको हम लोग, सेकेंडरी कार्निवोर. सो व्हेन वी कैन से यहाँ पे व्हेन we can say over here that plants है, उसके बाद में कौन है, herbivores. herbivores को खाने वाला एनिमल को क्या बोलेंगे, carnivores, primary carnivores. and primary carnivores को खाने वाला secondary carnivores, which means आपको क्या दिख रहा है, one animal, one organism feeds on the next. एक organism दूसरे पे feed कर रहा है. so this is the way in which जो एनर्जी कैप्चर्ड बाय द सन थी वो सबसे पहले प्लांट्स के पास आई, प्लांट्स के बाद हर्बीवोर्स के बाद प्राइमरी कार्निवोर, और फिर किसके पास गई, टू दी सेकेंडरी कार्निवोर. ओके, अभी क्वेश्चन आता है ये एनर्जी फ्लो हुआ यहाँ पे, बट कैसे होता है ये एनर्जी फ्लो. एंड ये सेकेंडरी कार्निवोर्स के बाद कौन आएगा, एपेक्स और टॉप लेवल. So how this energy passes? This energy passes by the simple 10% energy flow rule. कौन सा रूल है, 10% energy flow rule, which was given by Linderman. किसने दिया था, Linderman ने दिया था this rule. This rule was given by Linderman. Now what happens over here is जितना भी एनर्जी प्लांट्स ने लिया था उसमें से पूरा का पूरा एनर्जी नेक्स्ट टॉपिक लेवल के पास नहीं जाएगा. सो ये लिंडरमैन का 10% रूल समझने से पहले हमको पता होना चाहिए ईच लेवल इन दी फूड चेन, जो हर एक लेवल है ना फूड चेन में, ईच लेवल इन फूड चेन इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड एज ट्रॉपिक लेवल. ईच लेवल इन दी फूड चेन इज कॉल्ड एज व्हाट बच्चा लोग, ट्रॉपिक लेवल. सो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे ये जो हमारा फर्स्ट है प्राइमरी प्रोड्यूसर, इसको क्या बोला जाएगा, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल. क्या बोला जाएगा, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल. देन प्राइमरी कंज्यूमर्स को क्या बोला जाएगा, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल. देन वी हैव गॉट सेकेंडरी कंज्यूमर्स, दिस इज द थर्ड ट्रॉपिक लेवल. एंड देन नेक्स्ट वन वी हैव इज दी फोर्थ ट्रॉपिक लेवल. टर्शियरी कंज्यूमर्स को क्या बोलते हैं, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल. So over here each level in the food chain is called as tropic level. So यहाँ पे कैसे एनर्जी पास होते हैं वो हम लोग देखने वाले हैं अभी. So we have got over here sun, for example, this is our sun. So from sun we have got the energy which is being taken by the green plants during the process of photosynthesis. So यहाँ पे plants के पास आएगा, plants which are called as the producers, बाद में जाएगा किसके पास, it is going to go to the first primary consumer कौन है, herbivores. Primary consumer is the herbivores. फिर जाएगा to the secondary consumer which is called as the carnivore. Secondary consumer कौन है हमारा, carnivore. And then for example we are taking the tertiary consumer जिसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चा लोग,
सेकेंडरी कार्निवोर, क्या बोलेंगे उसको, सेकेंडरी कार्निवोर, सेकेंडरी कार्निवोर बोलेंगे। अभी ये जो एनर्जी फ्लो होती है ना, वो कैसे होती है, देखो कैसे होते हैं। सपोज प्लांट्स के पास 1000 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी है, सो उसमें से व्हाट हैपेंस, 90% ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट, किसको, टू द एनवायरमेंट। 90% ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट, सिर्फ 10% आगे बढ़ती है, मतलब कितना जाएगी, इट इज गोइंग टू गो ओनली 100 किलो जूल्स। अभी उसमें से भी यहाँ पे 90% एनर्जी वापस क्या होगी, लॉस्ट। 90% एनर्जी इज अगेन गोइंग टू गेट लॉस्ट, एंड कितना जाएगी आगे, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू हैव 10 किलो जूल्स। अभी 10 किलो जूल्स में भी 90% लॉस्ट होगी, तो हमारे पास कितना बचा है बच्चा लोग, 1 किलो जूल्स। सो क्या दिख रहा है आपको, जो एनर्जी पास हो रही है ना आगे, वो कैसे कब पास हो रही है, बहुत ही कम। कितनी पास हो रही है, खाली 10%, एंड रिमेनिंग 90% गेट्स लॉस्ट इन द एनवायरमेंट। अभी क्वेश्चन ये आता है, कौन कौन आते हैं इसमें, लाइक कौन से, जब ये जो आपको सीधा सा दिख रहा है, मैंने लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड एज फूड चेन। व्हाट इज फूड चेन, वी कैन सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फूड चेन ओवर हियर। जब भी हम लोग फूड चेन के बारे में बोल रहे हैं, व्हाट इज फूड चेन, so food chain is nothing but it's a linear relationship which we can see, in which one organism feeds on the one before it and it is been eaten by the one after it। क्या समझा आपको इसमें, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं ग्रास, ग्रास को कौन खा रहा है, ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर को कौन खा रहा है बच्चा लोग, फ्रॉग, फ्रॉग को कौन खा रहा है, स्नेक, स्नेक को कौन खा रहा है, ईगल। ठीक है, यहां तक ही देखते हैं। सो व्हेन वी से फूड चेन, फूड चेन इज नथिंग बट अ लीनियर रिलेशनशिप, जिसमें क्या होता है, वन ऑर्गेनिज्म, चलो फ्रॉग पकड़ा, वन ऑर्गेनिज्म फीड्स ऑन दी वन, ये किसके ऊपर फीड करता है, ऑन दी वन बिफोर इट, एंड इट इज बीन ईटन बाय द ऑर्गेनिज्म आफ्टर इट। तो क्या दिख रहा है, ये खा रहा है पहले वाले को, इसको कौन खा रहा है, बाद में वाले को। तो समझा फूड चेन का डेफिनेशन, इट इज अ लीनियर रिलेशनशिप शोइंग लीनियर रिलेशनशिप in which an organism feeds, organism feed करता है, organism feed करता है मतलब खाता है, organism feeds on another organism before it and it is been eaten by the one after it, so इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फूड चेन। अभी खाली फूड चेन तो एग्जिस्ट होते नहीं है, तो पहले फूड चेन के प्रकार देख लेते हैं हम लोग। फूड चेन के टाइप्स कितने होते हैं, सो व्हेन वी सी फूड चेन के टाइप्स, सो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं, फूड चेन इज डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट टाइप्स। वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड चेन, 3 types, which is the first one is the grazing food chain, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, GFC, क्या बोलते हैं उसको, GFC, that is grazing food chain। सेकेंड वाला होता है बच्चा लोग detritus food chain, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, DFC, एंड थर्ड वन होता है parasitic food chain। So over here we are going to study about GFC and we are going to study about DFC। अभी GFC और DFC में क्या फर्क है, बहुत सिंपल। जब भी हम लोग देखेंगे ग्रेजिंग फूड चेन खत्म होता है तो व्हील से डेट्राइटिस फूड चेन स्टार्ट होता है। ग्रेजिंग फूड चेन मतलब ग्रास, जैसे ग्रास, फिर यहाँ पे लिख दिया हमने डियर, और फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दिया लायन, बस खत्म कर दिया, छोटा सा फूड चेन बनाया, ग्रास, डियर एंड लायन। So here we can see, ये तो अपने पास प्रोड्यूसर है, what this will be called as herbivore, and यहाँ पे क्या बोला जाएगा, carnivore, lion is the carnivore। So जो भी एनर्जी फिक्स था by the grass, उसमें से पास हुआ किसको, to deer, and बाद में किसके पास गया, to lion। अभी यहाँ पे जब भी lion मर जाएगा, once the lion is dead, so when this organism dies, जब ये ऑर्गेनिज्म डाई होता है, इट इज द बिगिनिंग ऑफ DFC। सो वी हैव सीन, जब भी ये लायन का डेथ हो जाता है, द डेथ ऑफ द एपेक्स कार्निवोर, या तो जहां पे GFC खत्म हो जाता है,
वी कैन से यहाँ पे दिस इज द एंड ऑफ ग्रेजिंग फूड चेन। तो जब ग्रेजिंग फूड चेन एंड होता है लायन का, इट इज द बिगिनिंग ऑफ, किसका बिगिनिंग है? बिगिनिंग ऑफ डीएफसी विच इज डेट्राइटस फूड चेन। अभी जब डेट्राइटस फूड चेन हमने देखा तो डेट्राइटस फूड चेन इट इज गोइंग टू इंक्लूड, किसको इंक्लूड करेगा? इट इज गोइंग टू इंक्लूड सैप्रोट्रोप्स। किसको इंक्लूड करेगा? सैप्रोट्रोप्स। मतलब क्या बोलते हैं इनको? सैप्रोफाइट्स भी बोला जाता है, सैप्रोट्रोप्स और सैप्रोफाइट्स। व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स दैट दे आर फीडिंग, दे फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। किसके ऊपर फीड करते हैं? ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। अभी ये जो सैप्रोट्रोप्स है इसमें कौन आता है? दिस सैप्रोट्रोप्स और सैप्रोफाइट्स विच इज फीडिंग ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, इसमें कौन कौन आता है? दिस इज गोइंग टू इंक्लूड, इट इंक्लूड्स बैक्टीरिया एंड फंगाई। क्या इंक्लूड होता है? इट इंक्लूड्स बैक्टीरिया एंड फंगाई। सो इट इज गोइंग टू इंक्लूड बैक्टीरिया एंड फंगाई। These are the saprotrophs और saprophytes। ये करते क्या है? What do they do? What do they do? Tell me. They are going to convert, ये convert करते हैं, these are going to convert जो भी complex, they are going to convert the complex organic substances which are present in the dead bodies। complex organic substances जो कहाँ पे present है बच्चा लोग? in the dead bodies, in the dead bodies, dead organisms, उसको convert करते हैं कहाँ पे? into the simple inorganic substances या molecules। हमने ये decomposition process में देखा था। complex organic substances are converted into simple inorganic substances and this takes place by DFC, detritus food chain, जिसमें हमने स्टेप्स ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। कौन से स्टेप्स थे बताइए याद से? पहला कौन सा था? फ्रेगमेंटेशन, सेकेंड लीचिंग, थर्ड वाज कैटाबॉलिज्म, फोर्थ वाज ह्यूमिफिकेशन एंड पांचवा स्टेप कौन सा था बच्चा लोग? मिनरलाइजेशन। याद है 5 स्टेप्स? ओके, सो दैट वाज द DFC। सो दीज वर द 3 टाइप्स ऑफ फूड चेन। बट क्वेश्चन एक आता है यहाँ पे, इफ आई ड्रॉ दिस काइंड ऑफ एन एनर्जी पिरामिड, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एनर्जी पिरामिड। ठीक है, अगर बनाया तो एनर्जी पिरामिड का शेप कौन सा दिख रहा है आपको बच्चा लोग? दिस एनर्जी पिरामिड शेप इज व्हाट? इट इज अपराइट। इट इज अपराइट विच मीन्स इसका बेस कैसा है? ब्रॉड एंड नैरो अपेक्स। ऐसा क्यों है? बिकॉज सबसे नीचे आ रहे हैं हमारे पास प्लांट्स जिसको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रोप्स या तो प्रोड्यूसर्स, इसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। उसके बाद में नेक्स्ट आ रहे हैं ऑर्गेनिजम्स विच आर कॉल्ड एज हर्बीवोर्स। कौन आते हैं? हर्बीवोर्स विच आर कॉल्ड एज प्राइमरी कंज्यूमर। उसके बाद में आते हैं कार्निवोर्स। कौन आता है? कार्निवोर्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर। बाद में आते हैं tertiary consumers which are called as secondary carnivores। they are called as secondary carnivores, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? tertiary consumers। secondary carnivores are called tertiary consumers। and बाद में लास्ट में इधर omnivores लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे बच्चा लोग? omnivores। अभी ये जो नाम है omnivores के, उसके हम लोग को पढ़ना है। when we say this is the first trophic level, first trophic level, this is the second trophic level, second trophic level, this is the third trophic level, third trophic level। तो यहाँ पे जो फोर्थ ट्रॉपिक लेवल है ना, दिस सेकेंडरी कार्निवोर्स के अंदर ही कौन आता है बच्चा लोग? ओमनीवोर्स। ये सेकेंडरी कार्निवोर्स को ही हम लोग ओमनीवोर्स बोलेंगे। सेकेंडरी कार्निवोर्स इज ओनली कॉल्ड एज ओमनीवोर्स विच इज, पहले हमने इसको अलग लिखा था, सेकेंडरी कार्निवोर्स आर ओनली कॉल्ड एज ओमनीवोर्स। So over here we'll say secondary carnivores, जिसको बोलते हैं tertiary consumer। कैसे याद रखना है? omnivores कौन आता है? देखो, omnivores मतलब फोर्थ ट्रॉपिक लेवल आता है। omnivores कौन आता है? फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। So this is called as omnivores। अभी क्वेश्चन आता है व्हाट आर ओमनीवोर्स और इसके एग्जांपल्स क्या है? व्हाट आर ओमनीवोर्स? व्हेन वी से ओमनीवोर्स, दे आर गोइंग टू फीड ऑन, किसके ऊपर फीड करेंगे? दे आर गोइंग टू फीड ऑन हर्बीवोर्स एज वेल एज कार्निवोर्स। किसके ऊपर फीड करते हैं? ऑन हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स।
herbivores and carnivores दोनों पे फीड करते हैं. And we have the example over here as crow, cockroach, then we have man and we have bear. So these are the examples of omnivores. We have got crow, we have cockroach, we have man and we have bear. So they are omnivores. So यहाँ पे अगर हमने देखा एनर्जी कितना पास हुआ, देखो यहाँ पे 10% के हिसाब से, चलो यहाँ पे 1000 से फिर बाद में कितना हो गया, यहाँ पे 100, यहाँ पे 10, यहाँ पे 1. तो अभी क्वेश्चन आता है, ये जो लास्ट ट्रॉपिक लेवल है टर्शियरी कंज्यूमर, जो लास्ट है ना टर्शियरी कंज्यूमर, जो 4th ट्रॉपिक लेवल है, वहां पे आपको एनर्जी कितना दिख रहा है बच्चा लोग, बहुत ही कम है. कितना है, 1 किलो जूल. द एनर्जी विच इज अवेलेबल टू द टर्शियरी कंज्यूमर और टू द 4th ट्रॉपिक लेवल इज वेरी वेरी लेस. सो कैन ये बेचारा ऑर्गेनिज्म भी डिपेंडेंट ऑन खाली ये सेकेंडरी कंज्यूमर पे अपने फूड के लिए? तो आंसर इज नो. ये जो this secondary carnivores which is tertiary consumer cannot feed on, खाली ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर सकता अपने फूड के ऊपर. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एक एग्जांपल लेंगे तो समझ में आएगा. यहाँ पे सपोज हमने ग्रास हॉपर लिया है हर्बीवोर्स में, यहाँ पे हमारे पास कौन है बच्चा लोग, फ्रॉग. यहाँ पे कौन है, स्नेक. तो स्नेक विल नॉट बी ओनली बी डिपेंडेंट ऑन फ्रॉग फॉर इट्स फूड. सिर्फ फ्रॉग खा के अपना गुजारा नहीं करेगा, उसको और भी कुछ चाहिए होगा. बिकॉज जो एनर्जी अवेलेबल हो रहा है उसको फ्रॉम फ्रॉग वो बहुत कम है. कितना जा रहा है, खाली 1 जा रहा है, तो उतना उसके लिए काफी नहीं है. सो वी कैन से दिस स्नेक इज गोइंग टू फीड ऑन और भी थिंग्स डिफरेंट, और इट इज गोइंग टू फीड ऑन अदर थिंग्स ऑल्सो. सो इसके वजह से क्या होगा, ये जो है ना टर्शियरी कंज्यूमर ये और भी चीजों पे फीड करेगा, जिसके कारण एक लीनियर फूड चेन की जगह पे वी आर गोइंग टू हैव एन इंटरकनेक्टेड वेब लाइक स्ट्रक्चर. वी आर गोइंग टू हैव एन इंट्रिकेट नेटवर्क. जैसे यहाँ पे देखो, वी कैन हैव एन एग्जाम्पल like we have bird, we have got ठीक है, this bird we have got lizard over here is going to feed. यहाँ पे हमारे पास ग्रास हॉपर है, ग्रास हॉपर. तो ये भी फीड करता है ऑन लीव्स. सम बर्ड्स ऑल्सो फीड ऑन दूसरा लीव्स. दिस इज सम अदर लीव्स, ये भी अलग टाइप के लीव्स हैं. फिर उसके बाद में चलो लिजर्ड भी लीव खा रहा है. तो ग्रास हॉपर को कौन खा रहा है, फ्रॉग लिजर्ड को भी खा रहा है, फ्रॉग लिजर्ड को भी खा रहा है. देन वी कैन से बर्ड इज बीन ईटन बाय समवन एल्स. दिस फ्रॉग इज बीन ईटन बाय स्नेक. स्नेक इज बीन ईटन बाय ईगल. सो हम लोग को क्या दिखाई देगा, क्या ये एक पूरा इंट्रिकेट नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, विच फिगर वी हैव ओवर हियर. वी कैन सी ओवर हियर इन दिस पर्टिकुलर फिगर वी कैन सी दैट वी हैव गॉट कॉर्न. हमारे पास एक कॉर्न फ्लावरिंग प्लांट, एक फ्लावरिंग प्लांट, लैवेंडर, मैंगोज. सो क्या दिख रहा है, ये कॉर्न को ग्रास हॉपर खा रहा है. फ्लावरिंग प्लांट इज बीन ईटन बाय बटरफ्लाई. लैवेंडर बटरफ्लाई भी खा रहा है. अगेन बटरफ्लाई इज ईटिंग द लैवेंडर, फ्रूट फ्लाई इज ईटिंग द मैंगो. So this butterfly can be eaten by dragonfly, it can be eaten by frog, and we can see ये frog ये fruit fly भी खा रहा है. तो ये जो दिख रहा है देखो, एक frog, एक एग्जाम्पल देखो. We can see this particular frog, this one particular frog is eating grasshopper, is eating butterfly, is eating fruit fly, is eating dragonfly. क्या दिख रहा है, एक ऑर्गेनिज्म खाली एक चीज के ऊपर डिपेंड नहीं होता फॉर द फूड, बिकॉज उसको एनर्जी लेवल ज्यादा चाहिए होता है, और जो पास होता है एनर्जी फ्लो में एनर्जी वो बहुत ही कम है. तो वन ऑर्गेनिज्म इज गोइंग टू डिपेंड अपॉन मेनी ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड. और इससे क्या बन जाएगा, इससे हमारे पास एक इंट्रिकेट नेटवर्क बन जाएगा. वी आर गोइंग टू हैव एन इंट्रिकेट नेटवर्क, एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर जिसमें एक ऑर्गेनिज्म कई और ऑर्गेनिज्म को खाता है, कई और ऑर्गेनिजम्स को खाता है. जैसे अगर सबसे ज्यादा तो यही दिख रहा था हमको फ्रॉगी एग्जांपल में. फ्रॉगी क्या क्या खा रहा है, मैंने बताया था ग्रास हॉपर, बटरफ्लाई, फ्रूट फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई. और कोई एग्जांपल दिख रहा है आपको, ये देखो, ये जो ईगल है ना, ईगल ये किसको खा रहा है, ईगल इज ईटिंग दी वुल्फ, इट इज ईटिंग दी फ्रॉग. ईगल वुल्फ को खा रहा है, फ्रॉग को खा रहा है, ईगल ये थ्रश को खा रहा है. सो ईगल ये रैट को भी खा रहा है, ईगल पाइथन को भी खा रहा है. सो यहाँ पे दिख रहा है आपको, अगर ईगल है तो इट इज ईटिंग 1 2 3
4 5 डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। सो इससे वजह से क्या हो रहा है, एक इंटरकनेक्टेड वेब बन गया है, इंट्रिकेट नेटवर्क बन गया है। दिस इंट्रिकेट नेटवर्क इज कॉल्ड एज फूड वेब। सो मेनी फूड वेब एग्जिस्ट इन नेचर। क्यों इतने सारे फूड वेब एग्जिस्ट होते हैं इन नेचर? टू मेंटेन दी स्टेबिलिटी ऑफ द इकोसिस्टम। क्या मेंटेन करने के लिए? स्टेबिलिटी ऑफ द इकोसिस्टम। सो विद दिस वी कंप्लीट आवर टॉपिक ऑन एनर्जी फ्लो। सो वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। ये जो हमने लास्ट टॉपिक हमारा ये था, जो जिसमें मैंने बताया था आपको, ये फोटोट्रॉपिक लेवल क्या करता है, फीड करता है और भी बहुत सारे दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे। क्या मेंटेन करने के लिए? स्टेबिलिटी इन एन इकोसिस्टम देखा था हमने लास्ट टॉपिक, ठीक है। सो उसके बाद में हमने देखा, हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट गिव रीजन है जो एनर्जी फ्लो के ऊपर ही एग्जाम में कई बार आता है। इट इज बेस्ड ऑन एनर्जी फ्लो। व्हाट इज आस्क्ड इन दैट गिव रीजन इज द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इट इज द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शनल। मतलब ये जो एनर्जी का फ्लो है ना इकोसिस्टम में, कैसा होता है? इज यूनिडायरेक्शनल। ये एक इंपॉर्टेंट गिव रीजन सॉर्ट ऑफ में पूछा जाता है। तो जो एनर्जी का फ्लो है वो यूनिडायरेक्शनल क्यों है? बिकॉज एक बार जो सन से एनर्जी आ गया, किसके पास? टू दी प्रोड्यूसर्स। The energy from the sun has come to the producers. From the producer it is going to herbivores to it is going to primary consumer, primary carnivore। फिर किसके पास जा रहा है? टू सेकेंडरी कार्निवोर। एंड इनके डेथ के बाद वापस इट इज मतलब क्या होता है इसमें? फ्लो ऑफ एनर्जी यूनिडायरेक्शनल क्यों बोला जाता है? बिकॉज एनर्जी एक टॉपिक लेवल से दूसरे के पास जाएगी। जैसे कि हमने एग्जांपल देखा था, यहाँ पे 10,000 से यहाँ पे क्या हो जाएगा? 100, यहाँ पे 100 से 10 और यहाँ पे कितना होगा? 1 किलो जूल, ठीक है। सो हर्बीवोर्स कभी बोल नहीं सकता एनर्जी वापस ले लेने के लिए, किसको? टू दी प्रोड्यूसर्स। हर्बीवोर्स को अगर एनर्जी पास करना है तो वो किसको पास करेगा? इट इज गोइंग टू पास टू प्राइमरी कार्निवोर ही। एंड प्राइमरी कार्निवोर को एनर्जी पास करना है, वो हर्बीवोर्स को दे सकता है क्या? मैंने तेरे को एक जमाने में खाया था, वापस तू मेरे को खा ले, ऐसा, या वापस खाया हुआ ले ले, मैं निकाल देता हूँ, वापस दे देता हूँ देखो एनर्जी वापस। नॉट पॉसिबल। सो एक बार जो एनर्जी सन से आ चुका है प्लांट्स में, वो जाएगा टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, और नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, मतलब वापस रिवर्स नहीं हो सकता। दिस फ्लो ऑफ एनर्जी passes from one tropic level to the next, passes from one tropic level to the next, one tropic level to the next. It cannot be reversed. It cannot be reversed. रिवर्स नहीं हो सकता। इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। सो दैट इज वाई फ्लो ऑफ एनर्जी को क्या बोला जाता है? यूनिडायरेक्शनल। मतलब एक बार प्रोड्यूसर्स के बाद इट इज गोइंग टू गो टू हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स से किसके पास? टू प्राइमरी कार्निवोर, फिर बाद में टू सेकेंडरी कार्निवोर। वो एनर्जी कभी पीछे नहीं आ सकती प्रीवियस टॉपिक लेवल के पास। सो इट कैन नॉट बी रिवर्स। सो वी कैन से फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शनल। सो इसमें आप एग्जाम्पल देके एग्जाम्पल में दिखा सकते हो, जैसे आप ग्रास हॉपर, फ्रॉग, स्नेक, वो बचपन वाला एग्जाम्पल, एंड ईगल। दैट एग्जाम्पल कैन बी गिवन दैट फ्रॉम फ्रॉग इट हैज टू गो टू स्नेक। पहला स्टार्ट कैसे होगा? फ्रॉम ग्रास टू ग्रास हॉपर टू फ्रॉग, फ्रॉग टू snake. It cannot be reversed. So flow of energy is called as unidirectional. So this is the give reason which can be asked for 2 to 3 marks. So we move on to the next topic, which is ecological pyramids. Ecological pyramids. Now when we say ecological pyramid, ये क्या दिखाता है? This ecological pyramid is nothing going to, it is going to be showing a relationship of organisms at various trophic level. यहाँ पे हम लोग को रिलेशनशिप समझ में आएगा, किसका? ऑर्गेनिजम्स का। at various trophic level, अलग अलग ट्रॉपिक लेवल, at various trophic level. विथ रिस्पेक्ट टू क्या देखने वाले हैं हम लोग यहाँ पे? विथ रिस्पेक्ट टू देयर नंबर, बायोमास
एंड क्या होगा, लास्ट आएगा हमारा एनर्जी, थर्ड क्या होगा, एनर्जी। सो इकोलॉजिकल पिरामिड, इसमें हम लोग रिलेशनशिप और एस्टैब्लिश करने वाले हैं एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे के साथ एट वेरियस ट्रॉपिक लेवल्स। व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एट वेरियस ट्रॉपिक लेवल्स? कौन से कॉन्सेप्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू देयर नंबर, बायोमास एंड एनर्जी, विथ रिस्पेक्ट टू देयर नंबर, बायोमास एंड एनर्जी। सो अभी पहला देखते हैं हम लोग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पिरामिड। पिरामिड वर्ड का मतलब क्या होता है? पिरामिड वर्ड का मीनिंग है, इट इज नथिंग बट अ स्ट्रक्चर विच हैज अ ब्रॉड बेस, जिसके पास क्या होता है, ब्रॉड बेस एंड क्या होता है, नैरो अपेक्स। इट हैज अ ब्रॉड बेस एंड अ नैरो अपेक्स, जिसको इसको बोला जाएगा पिरामिड, जिसमें बेस क्या होता है, ब्रॉड, और ये अपेक्स कैसे होता है, नैरो। सो इट इज एन इन्वर्टेड कोन लाइक स्ट्रक्चर, इन्वर्टेड कोन लाइक स्ट्रक्चर। Now this structure, this concept of ecological pyramid was given by scientist named Elton. It was given by the scientist called as Elton, C. Elton, in the year 1927. So it was given by C. Elton in the year 1927, ecological pyramid. So हम लोग एक एक देखने वाले अभी, pyramid of numbers, pyramid of biomass, pyramid of energy. So जब भी start करते हैं हम लोग pyramid of numbers से, pyramid of numbers. So what is seen over here is pyramid of numbers is always upright, always upright रहता है। कैसा रहता है, upright, upright मतलब सीधा, it is always upright। मतलब क्या है इसका, इसका मतलब है जो number of producers है, they are always more than the number of herbivores, then the number of carnivores, and यहाँ पे हम लोग अपेक्स कार्निवोर्स लिख देते हैं, अपेक्स कार्निवोर्स मतलब टॉप लेवल कार्निवोर्स। सो अगर हमारे पास प्रोड्यूसर्स का नंबर है सपोज 5 lakhs, सो यहाँ पे हो जाएगा 2 lakhs, यहाँ पे सपोज हम लोग लेते हैं 20,000 नंबर, और यहाँ पे लेते हैं 100। सो क्या दिख रहा है आपको, नंबर उनका कम हो रहा है, नंबर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, नंबर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। वी कैन सी द नंबर इज गेटिंग डिक्रीज्ड। सो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर एग्जांपल है, इसमें कौन सा दिख रहा है, पिरामिड क्या है, अपराइट है। ये पिरामिड कौन सा है, अपराइट, जिसमें प्रोड्यूसर्स का नंबर ज्यादा दिख रहा है। सो एंड उनका नंबर क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। सो पिरामिड ऑफ नंबर्स मतलब क्या दिखा रहा है, रिलेशनशिप ऑफ वन ट्रॉपिक लेवल विद अनदर इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। तो यहाँ पे जैसे बेस से अपेक्स के पास जा रहे, देयर नंबर इज गोइंग ऑन रिड्यूसिंग, देयर नंबर इज गोइंग ऑन रिड्यूसिंग। बट ये जो पिरामिड ऑफ नंबर्स है, इसमें बच्चा लोग हमको एक एक्सेप्शन दिखता है, exception of this upright feature. Normally pyramid of number has to be upright, but there are exceptions when we ask ourselves, क्या पूछेंगे हम लोग exception बोलेंगे। जैसे एक सिंगल ट्री है, एक सिंगल ट्री है एंड उसको ईट करने वाले मेनी इंसेक्ट्स हैं, मेनी इंसेक्ट्स। सो यहाँ पे क्या बोलेंगे, when many insects are eating leaves of a single tree, तो तभी हमारा pyramid of numbers upright नहीं होगा। But normally in an ecological pyramid, the pyramid of number has to be upright. So we have this exception of many insects feeding on a single tree, wherein we can say the pyramid of number is inverted. ये केस में pyramid of number क्या बोलेंगे हम लोग, inverted. But this will not be the case always. It is always the pyramid of numbers has to be mostly upright. The next one is the pyramid of The next is pyramid of biomass. Now ये pyramid of biomass के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। Now what is the biomass? It is nothing but इसमें देखा जाता है dry weight of the organism, dry weight of the organism. So pyramid of biomass अगर हम लोग देखेंगे, for example on land, on terrestrial ecosystem, terrestrial ecosystem मतलब क्या बोलेंगे बच्चा लोग, on land, this pyramid of biomass in terrestrial ecosystem is upright, wherein we can say the biomass of the producers, मतलब कौन है बच्चा लोग यहाँ पे, plants, plants उनका biomass ज़्यादा है। then we can say यहाँ पे primary consumer जो कौन है, herbivores। फिर यहाँ पे है हमारे पास
इनका बायोमास कम होता है. सेकेंडरी कंज्यूमर, जिनका बायोमास और कम होगा, which is nothing but carnivores. So pyramid of biomass is going to decrease. जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, कितना उनका ड्राई वेट है. जैसे प्रोड्यूसर्स का ड्राई वेट ज्यादा है देन दी कंज्यूमर्स, देन दी प्राइमरी कंज्यूमर, देन दी सेकेंडरी कंज्यूमर एंड देन दी अपेक्स कंज्यूमर. सो वी कैन से यहाँ पे द अमाउंट ऑफ बायोमास डिक्रीजेस एज वी मूव टू फ्रॉम बेस टू अपेक्स. तो इस करके पिरामिड ऑफ बायोमास को क्या बोलेंगे? अपराइट. बट इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम, जब भी हम लोग एक्वेटिक इकोसिस्टम देखते हैं, मतलब पानी, एक्वेटिक इकोसिस्टम में द पिरामिड ऑफ बायोमास इज ऑलवेज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पिरामिड ऑफ बायोमास इज ऑलवेज इन्वर्टेड. पिरामिड ऑफ बायोमास इज ऑलवेज इन्वर्टेड. कैसे होता है? ऑलवेज इन्वर्टेड. इन्वर्टेड क्यों बोला है? इट इज बिकॉज जब भी हम लोग इक्वेटिक इकोसिस्टम बोलेंगे ना, जब भी हम लोग एक्वेटिक इकोसिस्टम बोलेंगे ना, उसमें क्या होता है? पिरामिड ऑफ बायोमास क्यों हमेशा इन्वर्टेड रहता है? इट इज बिकॉज यहाँ पे कौन आता है? यहाँ पे आएंगे फाइटोप्लैंक्टन, विच आर दी प्लांट्स विच आर प्रेजेंट इन दी सी. इसको कौन फीड करता है? कौन फीड करता है इसके ऊपर? इसके फाइटोप्लैंक्टन को खाता कौन है? जू प्लैंक्टन खाता है. जू प्लैंक्टन खाता है फाइटोप्लैंक्टन को. और यहाँ पे आएंगे फिशेस, और यहाँ पे आएंगे बिग फिशेस. सो वी कैन सी इनका बायोमास कंपैरेटिवली कम है फाइटोप्लैंक्टन का. सो द बायोमास ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन इज कंपैरेटिवली लेस देन जू प्लैंक्टन का ज्यादा है, फिशेस का और ज्यादा, एंड बिग फिशेस का और बायोमास ज्यादा है, जो ड्राई वेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म है. So the pyramid of biomass in the ocean or sea, in the ocean or sea is always कैसा होता है? Inverted. ये एक याद रखना है गिव रीजन के लिए. एंड लास्ट वाला आएगा हमारा pyramid of energy. When we say pyramid of energy, pyramid of energy, pyramid of energy में हम लोग pyramid बोलेंगे it has to be, it has to be is always upright. ये कभी इन्वर्टेड नहीं हो सकता. is always upright. इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है. it can never be inverted. it can never be inverted. क्यों? एनर्जी वाला पिरामिड क्यों नहीं इन्वर्टेड हो सकता? बाकी हमने पिरामिड ऑफ नंबर में देखा एक एक्सेप्शन है. जब भी एक ट्री है जिसको बहुत सारे इंसेक्ट खा रहे हैं, उसमें नंबर इंसेक्ट का ज्यादा था, प्लांट का कम था, एक ही था, तो वो इन्वर्टेड हो सकता है. एंड बायोमास में तो हमेशा इन्वर्टेड ही रहता है. कहाँ पे? इन दी एक्वेटिक इकोसिस्टम. बट द पिरामिड ऑफ एनर्जी कैन नेवर बी इन्वर्टेड. इट इज बिकॉज अगर प्रोड्यूसर्स के पास 100% एनर्जी है, तो वो हर्बीवोर्स को कितना परसेंट देंगे? कौन सा रूल फॉलो होगा? 10% रूल. तो 10% जाएगा, जबकि इधर कार्निवोर्स के पास कितना जाएगा? 1%. एंड अपेक्स के पास कितना जाएगा? 0.1%. कितना जाएगा? 0.1%. So the energy level at successive tropic level goes on decreasing as we move from first tropic level to the second, then second to third. So at successive tropic level the energy level goes on decreasing. So pyramid of energy is always upright. Pyramid of energy is always upright. It can never be inverted. It can never be inverted. बट इसमें हम लोग देखेंगे कुछ लिमिटेशंस है इकोलॉजिकल पिरामिड में. व्हाट आर द लिमिटेशंस इन इकोलॉजिकल पिरामिड? बच्चा लोग, व्हाट आर द लिमिटेशंस इन इकोलॉजिकल पिरामिड? द नंबर 1 लिमिटेशन, लिमिटेशंस इन इकोलॉजिकल पिरामिड में सबसे पहला लिमिटेशन, अभी हम लोग एग्जाम्पल जब भी हमने देखा था यहाँ पे, ये जो अपना पर्टिकुलर एग्जाम्पल था, देखो ये जो अपना पर्टिकुलर एग्जाम्पल था जहाँ पे हम एक फ्रॉग की बात कर रहे थे, ठीक है, फ्रॉग की बात कर रहे थे. जब भी हम इसको पिरामिड में दिखाते हैं तो हम लोग क्या दिखाएंगे? फ्रॉग कैन ईट ओनली, आइदर वी कैन से ग्रास हॉपर दिखाएंगे, ठीक है. बट दिस फ्रॉग मे बी फीडिंग ऑन मोर देन 1 ट्रॉपिक लेवल. मतलब क्या है? जैसे कि एग्जाम्पल वी कैन सी ओवर हियर, this frog
ओके, दिस इकोलॉजिकल पिरामिड हैज सर्टेन लिमिटेशंस, मतलब ये जो इकोलॉजिकल पिरामिड है ना, ये सिर्फ इंक्लूड करता है, दिस इज गोइंग टू इंक्लूड ओनली अ सिंपल फूड चेन, वो कभी भी फूड वेब नहीं दिखाता। तो लिमिटेशंस में वी हैव गॉट बच्चा लोग 3 लिमिटेशंस। फर्स्ट लिमिटेशन इज दिस इकोलॉजिकल पिरामिड इट ओनली शोज सिंपल फूड चेन। क्या शो करता है? सिंपल फूड चेन। It shows only simple food chain. It shows only simple food chain. It does not accommodate, क्या नहीं accommodate करता है? food web. Does not accommodate. Does not accommodate food web. Accommodate food web. Food web. फिर next वाला हम लोग बोलेंगे point जिसमें इन्होंने जगह ही नहीं दी। सैप्रोफाइट्स और सैप्रोट्रोप्स आर नॉट गिवन प्लेस, उनको जगह नहीं मिली, वो लड़ते नहीं है, बट कोई कोर्ट में जाके देखो, सैप्रोट्रोप्स आर नॉट गिवन एनी प्लेस in this ecological pyramid, in this ecological pyramid, in this ecological pyramid, in ecological pyramid means we can say ये जो सैप्रोट्रोप्स है ना बच्चा लोग, इसमें कौन आ रहा है? बैक्टीरिया, फंगाई, एक्टिनोमाइसिटीज, उनको कोई भी जगह नहीं मिली है। कहाँ पे? इन दी इकोलॉजिकल पिरामिड। एंड अभी थर्ड एंड आखिरी पॉइंट ये है, अ सिंगल ऑर्गेनिज्म, एक जो सिंगल ऑर्गेनिज्म है ना, इट मे ऑक्यूपाई more than one tropic level. It may occupy more than one tropic level. It may occupy more than one tropic level. इसका मतलब एक एग्जाम्पल आप दे सकते हो, जैसे एक स्पैरो है, ये एक स्पैरो है, देखो एक स्पैरो है, when it is feeding on seeds or fruits और लीव्स, तभी ये क्या बन रहा है? ये स्पैरो बच्चा लोग, दिस स्पैरो इज फॉर्मिंग दी, बोलो क्या बन रहा है? ये हर्बीवोर्स बन रहा है। क्या बन रहा है? हर्बीवोर्स, जिसको क्या बोलेंगे हम? प्राइमरी कंज्यूमर। क्या बोलेंगे? प्राइमरी कंज्यूमर। बट वेन दिस स्पैरो, यही सेम स्पैरो जब भी क्या कर रहा है? सीड्स, यहाँ पे इंसेक्ट और वर्म को खा रहा है ये स्पैरो, तभी ये केस में क्या बन रहा है? दिस इज बिकमिंग सेकेंडरी कंज्यूमर। क्या बन रहा है यहाँ पे? सेकेंडरी कंज्यूमर, बिकॉज इन दिस केस वी हैव द प्राइमरी कंज्यूमर एज इंसेक्ट और वर्म। कौन है इस केस में? प्राइमरी कंज्यूमर है इंसेक्ट एंड वर्म। So with this example we have completed the limitations of ecological pyramid, जिसमें हमने pyramid of numbers, pyramid of energy, pyramid of biomass देखा and सब उसके features देखे with examples. So with this we complete our topic and we are going to start with next topics about nutrient cycling or nutrient cycles in the next session. Till then, thank you so much.